Okay. So this is the worksheet that I have shared you on our WhatsApp group on Saturday. I hope you have attempted this worksheet. So let us discuss today's. This is lecture 0. Just wait. Okay, this is lecture 06, I think. Yes, that yesterday the last class was 05. Okay. So 06 lecture 22 June 2020. That is the worksheet 1 which I have given to you. Let us discuss. Okay. Can you hear me all now? Shall we start? Yes, sir. Okay, fine. So what is the answer if you have attempted the first question? Anyone answer from the first question? The piece of wire having a resistance R is cut into 5 equal parts. How will the resistance of each part of the wire compare with the original resistance? Let us say the first wire is having a resistance R. What will be the resistance of each part if it is cut into 5 equal parts? 5 equal parts. R/5. R Yes, upon very 5. good. The first answer is R divided by 5 is the right answer. Anyone having doubt in the first part of first question? If you are not having any doubt, just give a thumbs up. No, sir. Okay, fine. Now the second part. If the 5 parts of the wire are placed in parallel, how will the resistance of the combination compare with the resistance of the original wire? What will be the ratio of the resistance in series to that of a parallel? यहाँ पे अभी अपन ने series और parallel नहीं किया है, तो अभी आप but if you have attempted, can you give the answer? Yes, Kumkum. 5 अगर सबको कनेक्ट करेंगे पैरेलल में तो 25 आएगा R और R डैश का रेशियो नहीं 5 कैसे आएगा? अगर 5 पार्ट्स को मैंने 25 ज्वाइन किया है और 25 आएगा क्या आएगा? 25 सॉरी स्पीक लाउडली, आई एम अनएबल टू हियर यू. सर ये समझ ही नहीं आया. 25 25. ओके, चलो अभी इसको स्किप करते हैं बिकॉज अभी अपन ने सीरीज और पैरेलल नहीं किया है तो काफी जनों को समझ में नहीं आएगा. लेट अस स्किप द सेकंड पार्ट. Come to the second question. Calculate the resistance of 2 kilometer long copper wire of radius 2 mm. The resistivity of copper is 1.72 into 10 to the power minus 8. Yes, answer 54.8 ohm. 54.8 ohm. Anyone else? 2.74 ओम राउंड ऑफ करके 2.74 ohm. और किसी का कोई आंसर? Yes, रुचि एंड पलक. चलो दो डिफरेंट आंसर आ रहे हैं. लेट अस कैलकुलेट द सेकंड पार्ट. क्या कह रहा है? रेजिस्टेंस कितना है? आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है. हैविंग अ लेंथ ऑफ 2 किलोमीटर and 2000 meter. radius is how much? 2 mm 2 millimeter And resistivity is 1.7 1.72 into 10 to the power Into 10 minus to 8 माइनस 8 ओम मीटर. ये ओम मीटर में है, ये अंडरस्टूड. ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन गिवन है. मुझे रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले वी नो द रेजिस्टेंस फॉर्मूला इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए. दिस इज द फॉर्मूला वी हैव टू अप्लाई. नाउ सारी एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट करो. लेंथ को मीटर में, दैट इज 2000 मीटर हो जाएगा. 2000 meter. नाउ रेडियस को करो तो 2 mm है. 0.002 को 2 डिवाइड into 10 raised to power 3 रेड गया तो ये हो गया 2 into minus 3. माइनस 3 मीटर. यस और नो? yes Yes, sir. और रेजिस्टिविटी आपको ऑलरेडी गिवन है 1.72 अब कुछ नहीं करना है, वैल्यूज रखनी है.
रो हो गया 1.72 into 10 raised to power minus 8, length is 2000 and radius is 2 into 10 raised to power minus 3. Sorry, we have to put the area. Area क्या हो जाएगा? Pi r. Pi r square. So Pi r square. r square, that is 10 into 10 raised to power minus 3 का square. Is this right? Yes. Yes. Okay. So if I open the brackets, 1.72 into 10 raised to power minus 8 into 2000 divided by pi into 4 लिख सकता हूँ और ये हो जाएगा 10 raised to power minus 6. अब ये जो 10 raised to power minus 6 डिनोमिनेटर में, इसको जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये क्या हो So जाएगा? 10 raised to power 6 तो ये यहाँ से minus हट हटा के जाएगा. क्या मैं, चलो इसको नेक्स्ट स्टेप में करते हैं. ओके, तो यहाँ पे रख देता हूँ 10 raised to power plus 6 और इसको यहाँ से हटा दिया नीचे. नाउ व्हाट शुड आई डू? ये पाई है और ये 4 है, तो 2 1 जा 2 2 जा, और ये 10 raised to power 3 है, तो ये हो जाएगा 10 raised to power 9. समझ में आया? 1.72 Yes. into 10 raised to power minus 8 into 10 raised to power 9 upon pi into 2. अब ये और ये कैंसिल हो गया, बचा एक 10 लिख दिया यहाँ पे, तो ये हो गया मेरे पास 17.2 डिवाइडेड बाय पाई इंटू 2. तो पाई की वैल्यू लिखो 22/7 और 3.14 एज यू विल. तो 17.2 डिवाइडेड बाय 3.14 इंटू 2, तो ये हो गया 17.2 डिवाइडेड बाय 6.28. तो अगर 17.2 को 6.28 से डिवाइड करोगे तो अप्रोक्सीमेटली आंसर क्या आएगा आपका? लेस देन 3 होगा और मोर देन 2 होगा. यस प्रियांशु, क्या आंसर आया था आपका? 54.8. ये कैसा आया बेटा? इस टाइप का कुछ आंसर आएगा. 2.738. तो राउंड ऑफ करके अगर एग्जैक्ट रेजिस्टेंस हो जाएगा 2.7. 2.8 ohm. Is that clear? So answer is 2.74 ohm, that is given by Kunkun. This is wrong answer. I hope it is clear to you now. Yes, sir. The question 1 is done, 2 is done. Now the third question. Third question, first part. Any answer? 10 ohm. 10 ohm. 10 ohm. The resistance of the bulb when it is glowing. 10 ohm. How 10 ohm? R equals to V upon I कर formula से. Good. So first answer is right. Second, when the bulb takes up current, then the filament of the bulb heats up and temperature increases. and third, the resistance also increases. So Increases. so that resistance increases with respect to temperature. Okay. Any doubt in third question? Anyone? No, sir. Okay. Now the fourth question. Calculate the energy transferred when 2 ampere current flows through 10 ohm resistor for 30 minutes. 72 kilojoule. 72 kilojoule. Sorry, एक आंसर है ना. 72 kilojoule. Other answer? Any other answer? No, sir. Same answer. कुछ नहीं करना है, इसको मिनट से सबसे पहले सेकंड में कन्वर्ट करना है.
उसके बाद यू हैव टू यूज द फॉर्मूला। एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अभी वैसे मैंने ये कराया नहीं आई थिंक, है ना? बट यू कैन डू इट, कर सकते हैं वैसे, बिकॉज वी हैव डन वन फॉर्मूला, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। Yes. तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला एनर्जी का वो भी अपन ने पढ़ा नहीं है, बट यू दिस फॉर्मूला ऑल्सो फॉर फोर्थ क्वेश्चन। कैसे देखो, V equals to work done upon charge, so we have to find out the work done. So work done will be equals to V into Q. Now for V we can find out I into R. I is given to you how much, 2, and R is 10, so it is, and 20. and for Q we have formula I by T, sorry, I equals to Q by I T into है, T. तो I into T क्या हो जाएगा आपका? I into, 3600. so Q will be equals to I into T is 30 minutes, so it is into 60, and I की वैल्यू है 2, तो ये हो गया आपका 36. 100. So if you multiply this, you will get the answer V20 into, sorry, so 3600 into 20, that is 70 into 10 raised to power 3, that is kilojoule. Okay, first we have done. Now B part. One four four zero coulomb. 1440 1440 watt coulomb. 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 Any other answer? सिंपल है ये तो, Q इक्वल्स टू I इंटू टी हो जाएगा। I is 0.4, T is 1 R, so 60 into 60, that is 3600 into 4 by 10, so which is equals to 1440 coulomb. Okay, now the fifth question. A wire of length L and resistance R is stretched so that its length is doubled. Stretch किया है तो उसकी लेंथ क्या हो गई है? डबल. The resistance will, how will the resistance change? Resistance will be 4 times of the older one. Okay. Any other answer? लेंथ डबल हो गई है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा? हाँ. भाई आप किसी चीज को स्ट्रेच कर रहे हो, है ना? लेंथ अगर डबल हो गई, वॉल्यूम तो सेम रहेगा ना उसका। अगर लेंथ डबल हो गई तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा? हाफ हो Half. जाएगा उसका। तो अगर लेंथ अगर L से 2L हो जाए और एरिया A से A/2 हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस R से क्या हो जाएगा? 4R हो जाएगा। 4R. So resistance will change, it will change to 4R. And what about resistivity? It will not change. There will be no change. Very good. It will be, there will be no change. Just wait. Let me check. Divyanshu is joining. Okay. So there will be no change in resistivity, whereas resistance will change by 4R. Now the sixth question. A tube light draws 0.1 ampere current from a 220 volt source. What current will this tube light draw when it is connected to 110 volt supply? 0.05 ampere. 0.05. And 1/20 आएगा ना? देखो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, मैंने ये क्वेश्चन कराया भी था सिमिलर टाइप का। यहाँ पे 220 वोल्ट सप्लाई है, तब करंट कितना है? 0.1। तो अगर
V पे 0.1 एम्पियर करंट है, तो अब देखो ये 110 हो गया, यानी जस्ट हाफ हो गया, तो V/2 पे क्या हो जाएगा 0.1/2, दैट इज 0.05 एम्पियर इज द राइट आंसर। गुड कुमकुम। एनीवन हैविंग डिफरेंट आंसर? इसके अलावा किसी का कोई आंसर आ रहा है? आई वॉन्ट थम्स अप अगर समझ में आ रहा है तो। ओके, नाउ द सेवेंथ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। An electric wire is stretched to increase its length by 25%. What percent will the resistance will increase and what will be increased in its resistivity? अब percentage के term में बताना। Length Resistance will 25% also increase by 25%. sorry, Resistance will also increase by 25% because resistance is directly proportional to length. okay, And resistivity will not increase because it okay, does not depend on length and area. okay. Any other answer? No, sir. Same answer. Yes, sir. Look, अगर आप इसका आंसर ये दे रहे हो तो फिर फिफ्थ क्वेश्चन में आपने डिफरेंट आंसर क्यों दिया? यहाँ पे भी तो स्ट्रेच ही हो रहा है। अगर लेंथ इंक्रीज हो रही है 25% से, अगर वायर को स्ट्रेच किया तो क्या उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के पे कोई इफेक्ट नहीं होगा? जस्ट थिंक कि अगर आप वायर को, अगर देखो इस क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो रेजिस्टेंस का इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। हाँ बट 25% चेंज थोड़ा होगा इंक्रीज रेजिस्टेंस। लेंथ इंक्रीज हुई है 25% से, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितने से डिक्रीज होगा? 1/4 नहीं 4/100 भाई यहाँ पे लेंथ 1/4 आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर मैं लेंथ जैसे मान लो 25% का मतलब क्या हुआ? सेवन क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनो ध्यान से, कंफ्यूज मत हो। आंसर सेवन, जैसे लेट अस से मेरे पास ये 4 सेंटीमीटर का वायर था, ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस था आर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेट अस से था 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे मान लो, अज्यूम कर लेते हैं लेट अस, और इसका रेजिस्टेंस अभी मान लेते हैं आर था, ठीक है। अब ये 25% इसकी लेंथ इंक्रीज हुई है, तो 4 सेंटीमीटर का 25% कितना हुआ? 1 centimeter. 1 सेंटीमीटर और इंक्रीज हो गया, यानी कि अब जो मेरा वायर है ये हो गया है 5 सेंटीमीटर। तो क्या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 4 सेंटीमीटर स्क्वायर ही रहेगा या कुछ कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा। कम होगा ना, कितना कम होगा? 1/4 25%। मतलब 25% कम हो जाएगा, यानी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर था तो अब कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर स्क्वायर कम हो गया, 25% इसका कम हो गया, दैट इज 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब इसका रेजिस्टेंस कितना होगा ये आपको कैलकुलेट करना है, दैट विल बी आर डैश। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. So it will not be equal to 25%. It will be more than 25%. और कितना होगा वो आप कैलकुलेट करो। कुमकुम समझ में आया? हाँ। अब बताओ आंसर, रेजिस्टेंस विल बी इंक्रीज्ड बाय हाउ मच परसेंट?
56.25%. एक सेकंड, 5/3 कितना होता है? भाई ये आर डैश की वैल्यू आ गई मेरे पास, 5/3 रो एल बाई ए। तो आर डैश अपॉन आर कितना हो जाएगा? आर डैश है 5/3 रो एल बाई ए, और आर कितना है? रो एल बाई ए। ये कैंसिल आउट हो गया। अब परसेंटेज करना है तो आर डैश अपॉन आर इंटू 100 कर दो, तो ये हो गया 5/3 इंटू 100, दैट इज 500 डिवाइडेड बाई 3। तो ये हो गया आपका कितना? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? परसेंटेज की टर्म में कितना हो जाएगा ये? 3 1 6, इस तरह से आएगा। So it will be more than this much percentage. Are you getting my answer? यहाँ पे क्या किया है देखो मैंने, नई लेंथ इंक्रीज होगी तो L/4 यानी कि 25%, ये क्या है? 25% इंक्रीज हुआ है, और एरिया क्या हो जाएगा? 25% डिक्रीज हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो 25% मैंने यहाँ से माइनस कर दिया, तो ये हो गया 5L/4 नई लेंथ, और नया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया? 3A/4। तो आर डैश क्या हो जाएगा? रो एल बाई ए। तो 5L/4 और 3A/4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास बच गया 5/3 रो एल बाई ए। अब ये कितना है? ये कितना है? आर। तो आर का कितना हो गया? 5/3, और 5/3 को 1% में कन्वर्ट किया तो ये कन्वर्ट हो गया 5/3। तो 5/3 इंटू 100 इज अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया आपका? 166.66% इंक्रीज हो जाए। इज दैट क्लियर कुमकुम? Yes. एंड व्हाट विल बी द इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी की अगर बात करें तो यहाँ पे आंसर होगा नो इंक्रीज इन इट्स रेजिस्टिविटी बिकॉज इट विल रिमेन कांस्टेंट। आई होप नाउ इट इज क्लियर टू यू। Yes, sir. तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो, जो बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग। Okay. Anyone having doubt in the worksheet till now? Any of the question from 1st to 7th? Any question? No one is having doubt? No, sir. Okay, fine. So you have answers इनके note down कर लेना. If you have not done or any of the answer is incorrect, please make sure that you do the worksheets on regular basis, because worksheet के बिना आपको पता नहीं चलेगा कितना समझ में आ रहा है कितना नहीं। और at last we have to solve the numericals and the questions only in the exam. So you try at least once all the questions your own hands. Now page number 209 we will start. That is resistance of a system of resistors. Okay. So now what we have studied so far, हमने देखा है कि resistors जो है, resistance जो है वो क्या है, क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या है, किन चीजों पे फैक्टर्स पे वो डिपेंड करता है। नाउ अपन इस रेजिस्टेंस को कनेक्ट करने वाले इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर। हाउ टू कनेक्ट एंड रेजिस्टेंस इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट
For that we have two types of methods, or you can say two type of ways in which we connect resistance. So to connect resistors or resistance in an electric circuit, we have two ways. दो तरीके हैं. पहला क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन. बहुत अच्छे से समझना है इनको. और सेकंड है पैरेलल कॉम्बिनेशन. दो तरीके से अपन कनेक्ट कर सकते हैं रेजिस्टेंस को. एक है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन और एक है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन. अब ये दोनों क्या है, कैसे है, इसको देखते हैं. कैसे पता चलेगा कि कौन सा रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं, कनेक्टेड है, कौन सा पैरेलल. तो पहले अपन डिस्कस करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, देन वी विल डिस्कस पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो पहले देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे पता चलता है, और यहाँ पे कैसे देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन. ओके. अब सीरीज कॉम्बिनेशन में देखो, ये मेरे पास क्या है, बैटरी और अ सेल. दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव एंड. यहाँ पे ये मेरी के मीन स्विच, और यहाँ पे मैं रेजिस्टेंस लगा रहा हूँ. इसमें ये जो जिगजैग लाइन है, ये अपन ने सर्किट डायग्राम्स में देखा था. रेजिस्टेंस है, दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3. तो यहाँ पे देखो R1, R2 और R3 मेरे पास तीन रेजिस्टेंस है. दिस इज माय बैटरी एंड दिस इज के. क्या ये कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट है? यस, इट इज एन कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट विच इज क्लोज्ड. की बंद है, देखो डॉट है अंदर, और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव एंड है. यहाँ पे मैं डायरेक्शन शुरू कर देता हूँ करंट की. दिस इज करंट फ्लोइंग इन दिस सर्किट. इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है. ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव. यही अपन ने देखा था, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड. नाउ हाउ टू आइडेंटिफाई दैट इट इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन? इफ द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड. क्या वर्ड यूज कर रहा हूं मैं? एंड टू एंड का क्या मतलब है? एक के पीछे एक लगा हुआ है. यानी एक एंड ये है, दूसरे एंड से दूसरा रजिस्टर स्टार्ट हो रहा है, उसके दूसरे एंड पे दूसरा रजिस्टर स्टार्ट है. एंड टू एंड कनेक्शन है. ये एक कनेक्शन, ये दूसरा कनेक्शन, ये तीसरा कनेक्शन. अगर इस तरीके से एक के पीछे एक एंड टू एंड कनेक्शन है, देन वी विल से इट इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन. और इसी को अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी बैटरी है यहाँ पे सेम. यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3. पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, यहां से आपका करंट फ्लो हो रहा है, ये वापस आ रहा है. अब इन सब में करंट जाएगा, लेकिन वो करंट आई नहीं होगा यहाँ पे. तो वही करंट अभी बात करेंगे इसकी डिटेल में, बट अभी पहचानना कैसे कि ये सीरीज और पैरेलल देखते ही सर्किट डायग्राम को, कि ये साइड बाय साइड होंगे. पैरेलल का मतलब क्या होता है? दो लाइंस आपस में पैरेलल एट द सेम डिस्टेंस. तो यहाँ पे भी ये दो रेजिस्टर्स आपस में कैसे है? पैरेलल. ठीक है.
तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? साइड बाय साइड, वर्ड इज साइड बाय साइड कॉम्बिनेशन, एक साइड और फिर दूसरी साइड, फिर तीसरी साइड। तो अगर इस तरीके का कनेक्शन है तो देन वी विल से इट इज दीज R1, R2 and R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. So this is the best way to identify either the resistance are connected in series or in parallel. तो इसी को लिख लो सिंपल सा, यहाँ पे नोट बना के पॉइंट लिख सकते हो क्या? If the resistors are connected in, if resistors are connected side by side, then it is a series combination as shown in the figure. Similarly, if resistors are connected by, sorry यहाँ पे end to end लिखना गलत लिख दिया, the resistors are connected end to end, यहाँ हो जाएगा by side by side and it will be your pair. Anyone having doubt till now कि सीरीज और पैरेलल कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? So one is having doubt. Okay, now सीरीज कॉम्बिनेशन को डिटेल में पढ़ते हैं. इसके लिए लेट अस परफॉर्म दैट एंड सिमुलेशन से समझते हैं इसको. ये 3 रजिस्टर्स है मेरे पास. ये मैंने कनेक्ट कर दिया एक सिंपल सा इलेक्ट्रिक सर्किट, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है. ठीक है, ओके. ये एक एमीटर है. इस पॉइंट को मैं कहीं पे भी सर्किट पे रखूंगा तो वो मुझे करंट की वैल्यू फाइंड आउट करके देगा. ठीक है, तो एक तरह से ये एमीटर ही है मेरा, बट मैं इसको ऐसे ही लगा रहा हूँ यहाँ पे. इसको ऐसे मूव कर सकते हैं जस्ट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट. और ये मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट इज टू फाइंड आउट दी पोटेंशियल डिफरेंस. इसका मीटर का क्या नाम हो जाएगा? वोल्ट मीटर. ठीक है, ये दो एंड से इसको मैं कहीं पे भी रखूंगा तो ये मुझे मेजर करके देगा पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, अभी ये वैल्यूज चेंज कर देते हैं. ओके, ठीक है, ये सर्किट है मेरा. स्क्रीनशॉट ले लेते हैं. ओके फाइन. अब देखो यहाँ पे ये सर्किट है मेरे पास. व्हाट वी हैव टू डू इज, ओके, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है. दिस इज माय वोल्ट मीटर, दिस इज की, दिस इज बैटरी, दिस इज एमीटर.
सर्किट में किसी को कोई प्रॉब्लम? दिस इज No, पॉजिटिव sir. एंड दिस इज नेगेटिव है। तो यहाँ से जो करंट फ्लो होगा वो कैसे फ्लो होगा? इस डायरेक्शन में फ्लो होगा करंट आई। यहाँ पे मुझे मेजर करके देगा वो इलेक्ट्रिक करंट कितना है, और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दीज टू पॉइंट्स। एनीवन हैविंग डाउट टिल नाउ? Now I am, what will I do? I will No, sir. switch close the circuit, and what we have to measure is, मुझे करंट की डायरेक्शन देखनी है, सॉरी करंट की वैल्यू देखनी है। R1 के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है, R2 के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है, और R3 के अंदर कितना करंट। ये एक तो करंट की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। दूसरा मुझे फाइंड आउट करना है, ये बैटरी मेरे पास है 12 वोल्ट की। मुझे पता है ये बैटरी मैंने जो अप्लाई की है दैट इज ऑफ 12 वोल्ट। सिमुलेशंस के अंदर भी इसकी वैल्यू 12 वोल्ट है। मुझे फाइंड आउट करना है R1 के अक्रॉस, यानी R1 के अक्रॉस यानी इन दो पॉइंट से पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे रीडिंग्स आ जाएगी, वो कितनी है, R2 के अक्रॉस कितनी है और R3 के अक्रॉस कितनी है। तो ये चेंज करूंगा मैं नॉब्स, एक बार यहाँ पे रखूंगा और एक बार यहाँ पे रखूंगा, तो मेरे पास वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है, तो मुझे अल्टीमेटली फाइंड आउट क्या करना है, आई हैव टू फाइंड आउट, ये R1 है, R1 के अंदर मेरे पास करंट कितना आ रहा है, ठीक है, एंड पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज V कितना है। R2 के लिए मुझे देखना है करंट कितना आ रहा है, लेट अस से ये I1 ये V1, ये भी I1 और ये, पर ये हो जाएगा मेरे पास I2 और ये V2, और R3 के लिए मेरे पास I3 करंट और V3 करंट। ये मुझे फाइंड आउट करने हैं सिमुलेशन। अब आ जाते हैं इस पे, देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, स्विच को क्लोज कर रहा हूँ। प्लीज ऑब्जर्व द वैल्यू। आई हैव जस्ट क्लोज द स्विच। क्या हुआ इसको, वैल्यूज को नहीं दिखाई, एक सेकंड। आई थिंक ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम्स ये नहीं हो रहा है, इसको एक बार रीलोड करता है। वापस बनाना पड़ेगा सर, जस्ट वेट, क्योंकि फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा इससे आपको। और ये आप भी यूज कर सकते हो, साइट पे PHET वेबसाइट है ये, गूगल पे अगर आप सर्च करोगे PHET, तो ये आपके, आप भी यूज कर सकते हो इसको, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना के आप भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग और काफी कुछ है इसके अंदर, तो ये आप लोग भी परफॉर्म कर सकते हो। तो थोड़ा सा फास्ट बना, ओके। अब देखते हैं एक बार करंट। ओके, नाउ वी आर गेटिंग द वैल्यूज। ओके, ओके फाइन, नाउ इट इज करेक्ट। वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण नहीं हो रहा था, रीलोड